Good morning, students. We are conducting online classes of science of class 9. According to your new syllabus, your first chapter is motion. So you have to discuss in two parts. In first part, we have to discuss the theoretical approach, and in second part, we have to discuss the numerical portion. First part starts from the concept of rest and motion, which you have already studied in previous classes. So here we have to introduce a little bit about it. What is concept of motion and rest? As we have already studied, if a body changes its position with respect to a reference point, it is said to be in motion. And if the body does not change its position to a fixed point, then the body is said to be at rest. कोई भी बॉडी अगर किसी रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ से बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर रही है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वो मोशन में होगी, और अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट में होगी. डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है, कुछ टाइम के बाद 10-20 डिस्टेंस के बीच में पहुंचा है, फिर 30 के करीब पहुंच रहा है, तो इट मीन्स इट इज इन मोशन. ठीक है ना, बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. और यहाँ पे पॉइंट ओ जो है, इट इज द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द पर्सन स्टार्ट्स इट्स मोशन. ठीक, आफ्टर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? A scalar quantity, a physical quantity which is described completely by its magnitude, is called a scalar quantity. It has only magnitude and no direction, such as length, mass, time. There are a lot of quantities. Now, vector quantity is a physical quantity which requires both magnitude and direction for its representation or complete description. It is called a vector quantity. For example, displacement, velocity, and acceleration. Now there is a notation for the vector. Vector quantity is always represented by an arrow which is put upon that quantity. So these are the two types of quantities which we have discussed here. There are some more properties of vectors which you have studied in earlier classes, which you will study in next classes. Now the basic concept of distance and displacement you have already studied in previous classes. Suppose a person starts from point A and it is going along this particular path, which is a curved path, and it reaches at a point B. Now if we join the initial point A and final point B with a straight line, then it will be a displacement, and this curved path will be called the distance. So it means what is the property of distance? Actual length of part covered by a moving particle irrespective of direction. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी. At every time the direction is changing, this total distance measurement is called the distance. It is a scalar quantity और इसकी SI यूनिट मीटर रहेगी. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों की मीटर रहती है. फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर हम इनकी इनिशियल फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अब यह स्केलर क्या हो जाएगी? वेक्टर की द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी. ठीक है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच. इनको ज्वाइन कर देंगे, वेक्टर हो जाएगी, और इसको हम ए बी के ऊपर एक वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह से जो स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस है उसको हम वेक्टर के ऊपर एक कर्व का साइन बना देंगे, और इसकी भी SI यूनिट मीटर ही रहेगी, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ देयर आर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस. ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास 8 में. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यहाँ पे डायग्राम में देखें, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, 10 मीटर की डिस्टेंस 2 सेकंड में मूव की, फिर नेक्स्ट 10 मीटर 2 सेकंड में मूव की, फिर नेक्स्ट 10 मीटर 2 सेकंड में मूव करी. तो इसका मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, टाइम भी इक्वल आ रहा है, इट मींस इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. फिर उससे नीचे के डायग्राम में आते हैं. यहाँ पे ये कई डिस्टेंसेस हैं, ए बी बी सी सी डी डी. दे आर द डिफरेंट डिस्टेंसेस, 7 मीटर 15 मीटर 8 मीटर एंड 17 मीटर. लेकिन इनमें सब में सेम टाइम में उसने डिस्टेंस को कवर किया है. इसका मतलब इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. A body is said to have non-uniform motion when it travels unequal distances. Distances क्या हैं? Equal नहीं है.
और टाइम इंटरवल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। फिर आते हैं स्पीड पे। स्पीड आप पहले ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, केवल इनका रिवीजन करना है। स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो v इज इक्वल टू s अपॉन t, ये सिंबल्स हैं। स्पीड के लिए v ले लेते हैं, डिस्टेंस के लिए s ले लिया, टाइम के लिए t ले लिया, और इस बेस पे इसकी यूनिट देखें तो डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, टाइम की क्या है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अब एवरेज स्पीड की बात आती है। एवरेज स्पीड में क्या है कि कोई भी बॉडी हो सकता है कि वो एक इक्वल स्पीड से नहीं मूव कर रही, तो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर वो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उन टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम को ऐड कर देंगे, दोनों का रेशियो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। इसकी यूनिट भी वही रहेगी क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर दैट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे एक वर्ड पड़ जाता है गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इट इज अ डायरेक्शन की बात आ गई तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा तो वेक्टर में किसी में स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो इट मीन्स ये वेलोसिटी जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर एक्सेलरेशन भी आप पहले पढ़ चुके हैं। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक डायग्राम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई बॉडी मूव कर रही है। सपोज v1 जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v2 इसकी फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल मीन्स आफ्टर सम टाइम, अलग अलग टाइम्स पे हमने ले रखा है। t1 पे इसकी वेलोसिटी v1 ली है, t2 पे इसकी वेलोसिटी v2 ली है। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ v2 माइनस v1, और टाइम आपका जो है t हो जाएगा। t की जगह यहाँ पे हम t2 माइनस t1 कर लेते हैं, बाद में उसको डेल्टा t से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। अब जनरली जो आगे इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन भी आगे इक्वेशन ऑफ मोशन अभी आपको पढ़ना है, उसमें इसका एप्लीकेशन यूज होगा एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे इस v1 को हम u से रिप्लेस कर देते हैं, एंड u इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी। यानी जिस वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव करना शुरू कर रही है वो इनिशियल वेलोसिटी है। एट द एंड जो भी हमने डिटरमाइन की वेलोसिटी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो v1 एंड v2 आर रिप्लेस्ड बाय u एंड v। तो इसी फार्मूले में अगर इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं और यहाँ पे जीरो टाइम लेते हैं तो ये v माइनस यू अपॉन टी हो जाता है। इस डिफिनीशन का यूज हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ में करना है, इसीलिए मैंने इसको रेक्टेंगल में बंद किया है। इसको याद रखना है, इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है आगे। SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, और एक टाइम और आज डिवाइड हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन में कई पार्ट हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने की क्या कंडीशन है, इसी फार्मूले से देख सकते हैं। अगर v की वैल्यू u से ज़्यादा होगी तो ये न्यूमरेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा यानी कि v इज ग्रेटर देन u है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वो एक्सेलरेशन जो है उसका पॉजिटिव रहेगा। और इसी तरह से अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है, शुरू में ज़्यादा है बाद में कम हो रही है, तो फिर v इज लेस देन u हो जाएगा। और जब v कम होगा ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी तो निगेटिव आएगा न्यूमरेटर और एक्सेलरेशन माइनस में हो जाएगा। इसको हम डिसएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर थर्ड आपका एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, अगर इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी सेम है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। जब चेंज नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जीरो, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। फिर वन मोर थिंग इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी, उसी तरह से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिस्टेंस थी और यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल क्या है, फ्री फॉल जो बॉडी करती है अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस विद अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम,
इट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ इक्वल की जगह अनइक्वल अमाउंट्स हो गया चेंज इन वेलोसिटी में। ऐसा कब होता है, जैसे कोई भी ऑटो या कार अगर हम किसी क्राउडेड एरिया में जो है ड्राइव कर रहे हैं तो क्या कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी ब्रेक लेना पड़ता है, स्पीड कम हो जाती है, तो इस वजह से वो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आएगा, इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ को स्टडी करना है तो पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आते हैं। इसमें क्या है, फॉर बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है, तो उसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या उसकी पोजीशन जो है दैट विल बी सेम एट एवरी इंस्टेंट। इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, फिर अगले टाइम पे देखें, फिर अगले टाइम पे देखें, तो उसकी पोजीशन एक ही बनी रह रही है, तो वो रेस्ट पोजीशन ही है। तो इस ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, दैट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। फिर सेकंड कैसे आता है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक जैसी स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। तो स्ट्रेट लाइन जो है ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, लेकिन दैट विल बी द इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ये टाइम है आपका एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपकी डिस्टेंस है। इसमें अलग अलग पोजीशंस पे हम देखें, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस भी, कवर्ड डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, इस तरह से। तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस या इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस। फिर थर्ड पार्ट में आते हैं, फॉर अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी। अगर इंक्रीज कर रही होगी तो इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, और डिक्रीज कर रही होगी तो इस तरह से। एक्चुअली दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ही होते हैं। इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम कोई दो पॉइंट्स ले लें और उन पे इस तरह से स्लोप कर लें, स्लोप जो भी लाइन एक्स टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाती है दैट इज द स्लोप। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, इसका स्लोप पहले कम था फिर ज्यादा हो गया। अब इसमें देखते हैं, अगर दो पॉइंट्स ले रहे हैं, एक यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, एक इस पॉइंट पर ड्रॉ कर लिया, तो इसका स्लोप क्या था, पहले ज्यादा होकर फिर कम हो गया स्लोप। तो अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो दैट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीज कर रही है तो वो डिक्रीजिंग मैनर में आएगा। फिर तीसरा पार्ट है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम प्लॉट। यानी डिस्टेंस टाइम का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम इसी का एग्जांपल ले रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें ग्राफ हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अब हम करेंगे क्या, इस ग्राफ पे वी हैव टू टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी, कहीं पे भी, एनीवेयर एट सम डिस्टेंस। हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, उन दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इधर टाइम एक्सिस पे और फिर इधर इस लाइन पर ड्रॉ कर दिया, तो एक ट्रायंगल मिल गया हमको ABC। अब इस ट्रायंगल में जो ये एंगल हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है, इट इज द एंगल थीटा। और अगर इसी एंगल का हम टैन ले लेते हैं, टैन थीटा, तो इसी को हम स्लोप या ग्रेडियंट बोलते हैं। नीचे मैंने लिख रखा है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट जो है डिसाइड करना है तो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है लाइन, उसका टैन ले लेते हैं, वो स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे किसी राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में टैन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, AC, बेस क्या है, BC। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, AC अपॉन BC। तो यहाँ से AC की वैल्यू देखें, जो डिफरेंट डिस्टेंस इसने कवर की है D1 D2, तो ये इनका डिफरेंस D2 माइनस D1 हो जाएगा। इसी तरह से टाइम जब वो यहाँ पे था एट A, तो इट इज टाइम T2, व्हेन इट इज एट B, देन इट इज टाइम T1, तो इनका डिफरेंस T2 माइनस T1 आ जाएगा। इनकी वैल्यूज को AC अपॉन BC में पुट करेंगे, तो D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस के फॉर्म में है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो होता है क्या, स्पीड। इट मींस अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो जो उस ग्राफ यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। ये रिजल्ट यहां से आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। उसके बाद आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पे। इसमें भी अलग अलग केसेस हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है
तो क्या होगा, अलग अलग टाइम्स पे स्पीड वही रहेगी, इट मींस इट विल बी अगेन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। फिर यहाँ पे एक फार्मूला है जो पहले भी पढ़ा था अभी हमने, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और स्पीड को हम यहाँ v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टाइम हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट इंस्टेंट्स, क्योंकि स्पीड तो दोनों की सेम है, यहाँ पे भी स्पीड v है, यहाँ भी स्पीड v है, ये भी v है, और टाइम आपका क्या है अलग अलग, t2 एंड t1, तो दैट विल बी t2 माइनस t1 दिस टाइम इंटरवल। यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है वो t2 माइनस t1 है, और t2 माइनस t1, अब इनको जरा हम इन सिंबल्स के फॉर्म में लिखें। v को हम मेजर कर रहे हैं y एक्सिस के अलोंग, तो इसको हमने OY लिख दिया है, ठीक है। वो OY है क्या, AB के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही y एक्सिस के अलोंग है। और इसी तरह से t2 माइनस t1 आपका जो है ये इतना हो गया, ये क्या हुआ, AD हो गया, और OI को हम AB से रिप्लेस कर सकते हैं, तो AB इंटू AD, ये फार्मूला का होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो इट मींस अगर हमें किसी बॉडी से डिस्टेंस ट्रेवल कवर करनी है किसी भी टाइम इंटरवल में, तो हमें ये जो डॉटेड पोर्शन आपको दिख रहा है, उस स्पीड टाइम ग्राफ का जो है हम उसके अंडर का एरिया, जो भी टाइम इंटरवल हमें लेना होगा उसके अंडर में जो भी एरिया आ रहा है उस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एक थर्ड केस भी है, व्हेन द स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, जैसे कि पीछे आया था, अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा स्पीड भी इंक्रीज होगी, तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन मेकिंग एनी एंगल फ्रॉम टाइम एक्सिस। यहां पे भी हम देखें वही फॉर्मूला अप्लाई करें जो ऊपर किया था, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इनटू टाइम ये आपका हो जाएगा v/2 इंटू टी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहां पे v/2 का मतलब क्या है, एक्चुअली यहां पे ये एवरेज स्पीड ली जाती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पीछे हमने डिस्कस किया था। एवरेज स्पीड में क्या होगा, स्टार्टिंग में स्पीड क्या है 0, फाइनली क्या पहुंच गई v, ये v है आपका 0 प्लस v/2, तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड की जगह v/2 इंटू टी। अब v है क्या, AB, और t क्या है OB, तो हाफ इंटू AB इंटू OB, ये काहे का फॉर्मूला बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बन गया, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो इट मींस अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो हमें डिस्टेंस कवर करने के लिए जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया कैलकुलेट करना होगा। फिर इसके बाद आते हैं डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन पे। इसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, और इसमें दोनों मेथड है, एनालिटिकल मेथड भी है इसका, और दूसरा जो है ग्राफिकल मेथड भी है। दोनों सिलेबस में है, जो भी एग्जाम में पूछा जाए वो किया सकता है। अब यहां पे देखें, जैसे हमने पीछे बताया था कि जो असोलेशन की डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड एट एवरी स्टेप। तो यहां पे हम देखें जो पहला इक्वेशन हमारा होता है दैट इज v इज u प्लस AT। यहां पे कुछ सिंबल से एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें कोई भी बॉडी है इसकी इनिशियल जो मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी u से, फिर आफ्टर टाइम t इट कवर्स अ डिस्टेंस s एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। ठीक है, आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन का जो प्रूफ है उसमें असोलेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे। a इज v माइनस u अपॉन t, पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू AT, v इज इक्वल टू u प्लस AT, बस दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन आपका है s इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें हम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एवरेज वेलोसिटी पीछे फॉर्मूला हमने पढ़ा था दैट इट इज इक्वल टू u प्लस v इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो यहां से इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर डिस्टेंस के लिए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करते हुए वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन का भी एक यूज रहता है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा दैट v इज u प्लस AT, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। यहां पे हम लिख सकते हैं, कहां से आई है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन का एक रिजल्ट है, u प्लस AT, v की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटू t। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2u प्लस AT अपॉन 2 इंटू t से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स में, 2ut प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सेपरेट करके लिख देंगे, 2ut अपॉन 2 AT स्क्वायर अपॉन 2, दिस 2 विल बी कैंसिल्ड आउट। तो ऐसा आपका कितना हो गया, ut प्लस
हाफ AT स्क्वायर। ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो हमने 1 पढ़ रखा था। 1 में क्या था भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। वही इक्वेशन लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड से। v स्क्वायर इज यू प्लस AT होल स्क्वायर, और इसका कैलकुलेशन इस साइड में है। जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो v स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी, u स्क्वायर प्लस 2uAT प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस लास्ट के टू टर्म्स में हमें 2a कॉमन ले लेना है। कॉमन लेना क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। टेक 2a कॉमन, तो दैट विल बी ut प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2, एंड इट इज नथिंग बट द स्पीड फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम देखें तो ये s की वैल्यू होती है, इसकी जगह s सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। इट इज योर थर्ड इक्वेशन। तो ये तो एनालिटिकल मेथड हो गया। इसके बाद में ग्राफिकल मेथड भी देख लेते हैं। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। स्पीड टाइम ग्राफ हमने ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 ना लेके u ली है। दैट इज व्हाई द ग्राफ विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ये कुछ डिस्टेंस यहाँ पे कवर होने के बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन का पैटर्न लेता है। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया और यहाँ से भी वही काम करना है हमें। वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B एंड फ्रॉम A, और वही प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो पीछे पड़ी थी। इसमें कुछ भी नई प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी, जैसे कि असलेशन। असलेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। तो असलेशन की डेफिनेशन हम यूज करेंगे। असलेशन है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफिकल डेफिनेशन थी। अब स्लोप में क्या क्या आएगा, स्लोप में जो पहले बताया था आपको, इसका टेंजेंट ही निकाला जाता है। तो ये परपेंडिकुलर आपका क्या है, BD की वैल्यू v माइनस यू हो जाएगी, और टाइम की वैल्यू, ये आपकी वैल्यू क्या है, t। तो v माइनस यू अपॉन टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। v माइनस यू इज AT, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड में हमें क्योंकि डिस्टेंस का कैलकुलेट करना होता है, एस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो फॉर दैट पर्पस डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए जो हमने पीछे क्राइटेरिया पढ़ा था कि जो भी रिलेटेड डायग्राम होता है उसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है इन विच टू साइड्स आर पैरेलल, OABC। इट इज अ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस के लिए, तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ये आपका कितना हो जाएगा, v, इधर से ये साइड u हो गई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी फ्रॉम फिगर t। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी v प्लस यू इंटू टी। अब फिर यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन का ही यूज करेंगे। v की जगह हमने u प्लस AT को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, और यहां से इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। s इज इक्वल टू हाफ 2u प्लस AT इंटू टी, और फिर t से मल्टीप्लाई होकर उसी तरह से सेपरेट कर देंगे और सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी हमें। फिर आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड आपका क्या था, थर्ड इक्वेशन की प्रॉपर्टी है कि इसमें टाइम नहीं आता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो फॉर दैट पर्पस इसको हमें उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम अभी जो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 आया था हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसी को यूज कर लिया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हमने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट किया था, हाफ u प्लस v इंटू टी। और इसी को अब हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें मालूम है कि v इज u प्लस AT होता है, v इज u प्लस AT। यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट विल बी v माइनस यू अपॉन a, और यही वैल्यू t की सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपका u प्लस v अपॉन a, t की वैल्यू हो गई, और v माइनस यू हो गया। ठीक है, v माइनस यू अपॉन a इसकी वैल्यू है, v माइनस यू अपॉन a हमने ये रख दिया है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दैट विल बी 2as इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको ट्रांसपोजिशन करके v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। इट इज योर थर्ड इक्वेशन।